I've divided this chapter into two parts. The very first one is your cash book, which we have done. Today is the second part, second day. So we are talking about four books. When we did that cash book wala part, I told we record only the cash transaction. When I taught you double column cash book, I taught you we'll record only cash and bank related transactions, and we are done. Today we are going to record all the credit transactions. पक्का? So आज हम लोग क्या करने वाले हैं? जितने भी क्रेडिट उधारी वाले ट्रांजैक्शन है उसके बारे में देखेंगे. The first thing in your credit transaction, the book, the very first book, is your purchase. These four books will be specially prepared only. ठीक है, कुछ बोले कि ना बोले, we are going to prepare these four books, and you do know that whenever you buy goods or you sell goods, then only you are using the word purchase and sale. Definitely you'll be having some returns also, so उसके लिए अलग book बना है. So here, if you want to record any transaction in these books, there are two conditions that you need to fulfill. The very first condition, it should be off goods, and it should be on, because it will be, if it is on cash, it will be going the cash. Correct na? So what if we are buying any asset? What if we are selling any asset? So definitely cash में हुआ है asset का buy or sell, so it is going in the cash book. But if you are buying the asset on credit, so it will go in a separate book. That is a normal journal. We can also call it general journal, or we can call it journal proper. All the asset related transactions are recorded. Buying of assets, selling of asset. There are certain opening entries also in the question. Opening entries मतलब कि started the business with cash, stock and all that. Okay. So in the next year, you do not again start with the business. You carry forward the assets and liabilities of the previous year. So last year का जो balance is when it is coming in the current year, it is called, when the entry has been passed, and that entry is called as opening entry. Last year when you close the books of accounts, you again took the balances, that is the closing entry. Correct na? So these all entries will be prepared, or these all entry will be passed in what book? In your correct. So all the cash transactions in the cash book, all the credit transaction but of goods in these four, and other every other transaction in these books. और क्या बचा ऐसे? कुछ भी नहीं. If you took a liability, that also is in a journal proper. You took a bank loan. कैश पे नहीं होना चाहिए. जनरली बैंक में तो कैश ही आएगा. नहीं मतलब एसेट कैश होगा या फिर चेक होगा. तो वो जनरली वो कैश बुक में जाता है. बिकॉज लोन आप लेते हो तो वो कैश में सिंपल. अदरवाइज क्यों लोगे? हाँ, बट क्या होता है ना, कभी कभी आप एसेट बाय करते हो ऑन क्रेडिट एंड यू इश्यू सम लायबिलिटी लाइक डिबेंचर्स और समथिंग. होता है कुछ कोलैटरल सिक्योरिटी भी देते हैं. वो अपने को सिलेबस में नहीं है, बट याद रखो क्या जनरली एसेट रिलेटेड ट्रांजेक्शन यहाँ पे आते हैं. हमारे जो सिलेबस में हम लोग वो बात कर रहे हैं. करेक्ट है? Examples, the transactions that are passed in these books, and there will be transactions which are not recorded in these books. Very important. अच्छा, वेरी गुड. गुड्स भी बोल दिया, नाम भी दे दिया, मतलब इट इज नॉट अ कैश ट्रांजैक्शन. सो दिस विल बी गोइंग इन विच बुक? परचेस बुक. द सेम ट्रांजैक्शन, कुछ नया नहीं है सर इसके अंदर. ठीक है, सो इसको हम लोग कॉपी. अच्छा, यहाँ पे द सेम ट्रांजैक्शन, खाली एक नीचे वर्ड में क्या लिख रहा हूँ मालूम है आपको? एट 10% डिस्काउंट. What difference does it make? पहले वाला तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है. सेकंड इज आल्सो क्रेडिट ट्रांजैक्शन. हाँ, उसमें लिखा नहीं है और नाम नहीं है. जबरदस्त. दिस इज आल्सो अबाउट ट्रांजैक्शन. क्रेडिट ट्रांजैक्शन. देयर आर टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन. अच्छा, कभी कभी क्या बोलेगा मालूम है? बॉट गुड्स फ्रॉम राम एंड श्याम. नाउ द सेकंड वन.
मतलब आधा कर नहीं, हाँ आधा क्रेडिट और आधा जबरदस्त. So this is a transaction where तो इसको क्या आधा आधा लिखेंगे? 5,000 in the cash book हम्म, and the remaining 5,000 in the पैसे simple. हाँ. अच्छा ये अभी इंटरेस्टिंग कर रहा हूँ मैं. When do you receive an invoice? अगर कुछ खरीदा हो Simple. ये कौन सी बुक में जाएगा? तो अगेन क्रेडिट परचेज टू बुक. परचेज बुक है. आपको बोलेगा रिसीव एन इनवाइस. भाई हम लोग बिल लेते कभी जब हम लोग को कुछ खरीदा होगा. खरीदा होगा. आप खुद खरीद कर बिल देते हो हाँ. उनको. सिंपल लॉजिक है. ठीक है. कभी कभी ऐसे भी बोलता है कि राम इश्यूड एन इनवॉइस. लिख लेते चलो वो भी. 10,000 इनवॉइस या बिल सेम ही है. एक ही है ब्रो. अगेन द सेम परचेज बुक ओनली. नहीं समझा. समझे सर? और राम इनवॉइस्ड गुड्स टू अस. एनीथिंग. सर दिस इज जस्ट इंग्लिश. इनवॉइस मतलब उसने वही बिल बनाया वैसे. या सिंपल है. So this is a transaction. These are the transaction which will be recorded in the books of accounts. In the purchase book, definitely. पक्का? कोई डिफिकल्टी है इसमें? अच्छा अभी इसी का मैं क्या करने वाला हूँ मालूम है? कट पेस्ट करने वाला हूँ. एंड इसको ऑपोजिट कर दूंगा सेल के अंदर तो इट विल बी कमिंग इन द सेल्स बुक. हाँ. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट. इफ आई टेल यू सोल गुड्स. So tell me which book? सेल्स बुक. नो चेंज ना. सेम एंट्री आएगा. हाँ. बट इफ आई टेल यू but if the question something in this manner that sold goods to Rahim, half received by cash. Again, half cash book and half परचेज. है ना. इजी लग रहा है सर. कैश बुक. हाँ. हाँ हाँ. सेल्स बुक. यस. पक्का. यहाँ पे वो बोलेगा issued an invoice to Rahim. मतलब मैंने बेचा है वही सेल्स बुक. और Rahim received an invoice. Doesn't make a difference. डिफिकल्टी. इजी एकदम. तो ये तो बातें हो गई. ये तो बहुत इजी था यार. ये तो बातें हो गई हमारी अबाउट द परचेज बुक एंड सेल बुक. नाउ देयर आर टू मोर बुक्स दैट इज परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न. इसमें क्या करेगा वो? कुछ नहीं. अपने को बोलेगा कि वी रिटर्न गुड्स टू राम. वो सेल में बोलेगा कि ही रिटर्न गुड्स या ही रिसीव द नहीं ही रिटर्न द गुड्स. यस सेल्स में बोलेगा तो है ना. हाँ, मतलब हमें रिटर्न गुड्स मिला. परफेक्ट. बट यहाँ पे ध्यान में क्या रखना. अच्छा इसका है ना ये भी आता है. फॉर्मेट है इसका. वो बना देते हैं हम लोग. फॉर्मेट इज वेरी इजी. डेट. दिस इज द अमाउंट. एक्चुअली लेजर फोलियो कभी कभार बनता है कभी नहीं बनता. सम ऑफ द प्रोफेसर्स डू मेक अ लेजर फोलियो कॉलम. ये बनाते पर खाली रहता है. नहीं नहीं इन द जर्नल एंड लेजर तो बनाते ही है. बट इन द सब्सिडरी बुक्स आई डाउट दैट सी इन योर सिलेबस दे डोंट मेक इट. बट इवन इन योर कॉलेज द प्रोफेसर इज मेकिंग इट. मेक इट. सिंपल लॉजिक है ना. देन नेमिंग कैसे हो जाएगा इसका. डेट. राइट पर्टिकुलर्स और यू कैन राइट दिस इज अ परचेज बुक. परचेज जर्नल. राइट नेम ऑफ द सप्लायर ऑल्सो. या पर्टिकुलर्स की जगह पे जो अच्छा लगता है वो. दिस इज द कॉलम फॉर इनवर्ड इनवॉइस. No. Now, the main reason of preparing this book, is last time and also when I was discussing with you about the subsidiary books, so I told you that there is one person, he is designated
to do the purchase only. He is very good in he is very good in bargaining. So I won't give him a responsibility to sell the item. कि तू जाके खरीद, go crazy, जितना खरीदना खरीद, बट बार्गेन करके कम प्राइस में लेके आ. There's a person who's he's a very good salesman. वो बेचेगा, वो कोई भी आता है बंदा उसको कुछ ना कुछ बेच देता है. He's a very good salesman, a very good speaker. People are like, they are attracted to his speech. They're attracted to the product. He delivers that product का pitch in a manner that people are they want to take it. So हम लोग उसको परचेस करने को नहीं बोलेंगे. क्यों बोले? उसका पोटेंशियल जो है उसको कराओ ना. मेक सेंस? देयर इज अ पर्सन हु हैज एन हिसाब किताब इतना स्ट्रांग कि भाई उसको एक एक पैसे के बारे में इंफॉर्मेशन रहते, तो उसको हमने कैश के गले में बिठा दिया. आई नो मेरा पैसा यहां से वहां नहीं जाएगा. करेक्ट ना? सो देयर आर पीपल हु हैज सम क्वालिटी एंड सब्सिडरी बुक्स के अंदर हम लोग जो बंदे का क्वालिटी है ना उसके हिसाब से उसको बुक पकड़ा देते हैं और वो काम दे देते हैं. Correct? So here he is just doing the purchasing part, and whenever he buys the goods on credit, he records in the book and he just writes the name of the supplier. उसको जर्नल वाला नहीं बनाता है. क्या करता है वो? सिर्फ और सिर्फ सप्लाई का नाम लिख देता है एंड अमाउंट लिख देता है. नाउ कैन आई से मैं अभी आपको सेल्स का नहीं बताने वाला बिकॉज यहाँ पे सब सेम हो जाएगा. खाली सप्लायर की जगह पे नाम हम लोग लिख देंगे नेम ऑफ कस्टमर. परफेक्ट. और बायर. एंड यहाँ पे इनवर्ड इनवॉइस की जगह पे आई राइट आउटवर्ड इनवॉइस. दिस रिमेन्स द सेम, दिस रिमेन्स द सेम. एंड यहाँ पे परचेज बुक की जगह पे सेट पर्टिकुलर्स भी लिख सकते हैं. या यू कैन. सर ऐसा हाँ जब वहाँ लिख- अरे क्यों ऐसा ब्रो? अभी तो पढ़ाया तेरे को मैं अच्छे तरीके से, तो लिख दो ना ऐसा. लेवल बढ़ा दो अपना, है ना? नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन. ये वाला फॉर्मेट बहुत बेसिक है, बहुत इजी है. एग्जैक्टली सेम आ जाएगा व्हाट वी डिड इन द परचेज बुक. अमाउंट का एक कॉलम होगा, यहाँ पे एक कॉलम और होगा, डेट होगा, नेम ऑफ द कस्टमर सॉरी नेम ऑफ द सप्लायर रहेगा. बट यहां पे आएगा आपका डेबिट नोट. मतलब whenever you are issuing whenever you are doing purchase return ना, you issue a debit note. आप क्या इश्यू करते हो? ठीक है. तो आप कभी भी परचेस कर रहे हो तो आपको मिलता है बिल, तो जब रिटर्न करते हो ना तभी उसको डेबिट नोट देते हो, ये बोल के कि भाई मेरे को डेबिट कर दे, है ना? ठीक है भाई, मैं तो तेरे को डेबिट करके मतलब मैंने तो भाई तुमको गुड्स रिटर्न कर दिया, आई एम गोना पे यू दिस मच बिकॉज आई एम रिटर्निंग द गुड्स वर्थ रुपीस दिस मच, डेबिट नोट. सो द क्वेश्चन ना बिकॉज नॉट गिविंग द बिल ना, हाँ हाँ वो बिल का वो अपने तरफ से एक डेबिट नोट बना के दे देता है उसको ये परचेज रिटर्न परचेज रिटर्न में. इन सेल्स रिटर्न इट विल बी अ क्रेडिट नोट. So whenever you are issuing a debit note, it's a purchase return. Whenever you are issuing a credit note, it's a sales return. समझा? पक्का? अच्छा, उसके टाइप्स ऑफ जो बेसिक्स है ना वो मैंने लिख रहा, हम लोग क्वेश्चन में डायरेक्टली आ जाएगा, वो आपको मालूम भी पड़ जाएगा. दिस इज अबाउट दिस चैप्टर. डू यू अंडरस्टैंड? फॉर्मेट के इसके अंदर मैं बता दूं आपको, परचेज बुक के अंदर विल राइट कस्टमर्स, इनवर्ड इनवॉइस के बाद आउटवर्ड इनवॉइस. परचेज रिटर्न जर्नल में हम लोग लिखेंगे सेल्स रिटर्न जर्नल की जगह पे नेम ऑफ द सप्लाई के वगैरह वो कस्टमर एंड क्रेडिट. पक्का? वी कैन डायरेक्टली टेक अ क्वेश्चन. चलो चालू करो.